Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Page number 171, Knowledge Check. Fill in the blanks. First, the arrangement of a magnet in the north-south direction is called its dash property. The arrangement of a magnet in the north-south direction is called its directional property. Second, a north pole of a magnet always attracts the dash pole of another magnet. A north pole of a magnet always attracts the south pole of another magnet. Third, dash is an example of a natural magnet. Magnetite is an example of a natural magnet. Fourth, dash poles of magnets attract and dash poles of magnets repel each other. Unlike poles of magnets attract and like poles of magnets repel each other. Fifth, dash of a magnet cannot exist independently. Poles of a magnet cannot exist independently. Page number 175. Choose the correct option. First, two magnets are placed end to end and they move away from each other because A. Both the poles are strong. B. Both the poles are north. C. One of them is a magnetic material. D. One pole is north and other is south. Answer is B. Both the poles are north. Second, which of the following are magnetic materials? A. Gold and iron. B. Iron and copper. C. Cobalt and nickel. D. Aluminum and iron. Answer is C. Cobalt and nickel. Third, which of the following is not a magnetic material? A. Nickel. B. Cobalt. C. Zinc. D. Iron. Answer is C. Zinc. Fourth, the north pole of the freely suspended magnet points towards A. Geographical north of the earth. B. Geographical south of the earth. C. Magnetic north of the earth. D. None of the above. Answer is B. Geographical south of the earth. Fifth, a device used to store information on ATM cards and credit cards. A. Hard disk. B. Magnetic strip. C. Magnetic compass. D. Microphone. Answer is B. Magnetic strip. Exercise B. Fill in the blanks. First, lodestone means dash stone. Lodestone means leading stone. Second, the strong and powerful magnets are made of dash. The strong and powerful magnets are made of iron. Third, the dash is used for navigation as it has a pointer that always points dash. The compass is used for navigation as it has a pointer that always points north. Fourth, a magnet can be demagnetized by dash. A magnet can be demagnetized by hitting. Fifth, small iron pieces kept at the poles of magnets to preserve them are called magnetic dash. Small iron pieces kept at the poles of magnets to preserve them are called magnetic keeper. Exercise C. State whether the following statements are true or false. First, permanent magnets are strong magnets that retain their magnetic properties for a long time. True. Second, Earth behaves as a huge magnet whose magnetic north pole is at the geographic north pole. False. Third, every magnet has two poles which can be separated. False. Fourth, a horseshoe magnet is stored by keeping two magnetic keepers on its poles. False. Fifth, electric motors have strong magnets inside them. True. Exercise D. Give reason for each of the following. First, Earth behaves like a huge magnet. Earth magnet की तरह behave करता है क्यों? Answer. Earth has magnetic properties and thus behave like a huge magnet. क्योंकि अर्थ के पास खुद की एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए वह मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. सेकेंड,
A temporary magnet can be easily demagnetized. टेम्परेरी मैग्नेट इजीली से डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है, क्यों? आंसर, टेम्परेरी मैग्नेट्स आर वीक मैग्नेट दैट रिटेन their magnetism only for a short period of time, hence these can be easily demagnetized. क्योंकि टेम्परेरी मैग्नेट वीक मैग्नेट होता है, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो थोड़े समय के लिए होती है, इसलिए वह इजीली डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है. थर्ड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट. मैग्नेट के पोल्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग होती है, क्यों? आंसर, a freely suspended magnet rests in north-south direction only. Due to this directional property, sailors used magnet in navigation in olden time. क्योंकि मैग्नेट को जब हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है, वो उसके डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के कारण. और ओल्डन टाइम्स में, पुराने ज़माने में जो सेलर्स है वो मैग्नेट का यूज़ दिशा को ढूंढने के लिए करते थे. फोर्थ, स्टोरिंग ऑफ अ मैग्नेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू प्रिजर्व इट. मैग्नेट को प्रिजर्व रखने के लिए मैग्नेट को अच्छी तरह स्टोर करना इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों? आंसर, इफ़ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली अ मैग्नेट कैन लॉस इट्स मैग्नेटिज्म. अगर मैग्नेट को हम प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे तो उस मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देता है. फिफ्थ, मैग्नेटिक पोल्स कैन नेवर बी आइसोलेटेड. मैग्नेटिक पोल्स आइसोलेटेड नहीं होता है, क्यों? आंसर, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर एंड थस कैन नेवर बी आइसोलेटेड. क्योंकि मैग्नेट हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो कभी भी आइसोलेटेड नहीं होता. एक्सरसाइज ई, गिव एन एग्जाम्पल फॉर द फॉलोइंग. फर्स्ट, नेचुरल मैग्नेट. आंसर इज lodestone. Second, artificial magnet. Answer is disc magnet. Third, permanent magnet. Answer is AlNiCO. Means Al means aluminium, Ni means nickel, Co means cobalt. Fourth, medicinal use of magnet. Answer is MRI scanning. Fifth, magnetic material. Answer is iron. Exercise F. Answer the following question in one word or a sentence. First, name the person who was first supposed to discover natural magnet. Answer is Magnus. Second, give an example of magnetic material. Answer is iron. Third, name two poles of a magnet. Answer is North Pole and South Pole. Fourth, which device is used for navigation? Answer is magnetic compass. Fifth, name a method to make temporary magnets. Answer is Dutch method. Exercise G. Answer the following question in brief. First, differentiate between magnetic and non-magnetic material. मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में डिफरेंस बताइए. आंसर, मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन, कोबाल्ट एंड निकल दैट गेट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स. नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स सच एज एल्यूमिनियम एंड जिंक दैट डू नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल, उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है, और जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं उसे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है, जैसे एल्यूमिनियम और जिंक. सेकेंड, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स मेड अप ऑफ. स्ट्रॉन्ग मैग्नेट किसका बना होता है? आंसर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स आर मेड ऑफ न्यूडीमियम. स्ट्रॉन्ग मैग्नेट न्यूडीमियम का बना होता है. थर्ड, वाई इज द आउटर फ्रेम ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास मेड अप ऑफ अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. मैग्नेटिक कंपास का आउटर फ्रेम जो होता है वह नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का क्यों होता है?
Answer. If the outer case is made of a magnetic material, magnetic needle would stick to it and will not rotate freely. अगर मैग्नेटिक कंपास का जो आउटर केस है वह अगर मैग्नेटिक मटेरियल का बना होगा तो उसकी जो नीडल है वह स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगी और वो फ्रीली रोटेट नहीं हो पाएगी। इसलिए आउटर फ्रेम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। फोर्थ, हाउ आर मैग्नेट्स डीमैग्नेटाइज्ड? मैग्नेट डीमैग्नेटाइज्ड कैसे हो जाता है? आंसर. मैग्नेट्स कैन डीमैग्नेटाइज्ड बाय हिटिंग, हैमरिंग और थ्रोइंग ए मैग्नेट फ्रॉम अ हाइट. A magnet may also lose its magnetism if it is not stored properly when not in use. अगर मैग्नेट को हम हीट करेंगे या हैमर मीन्स उसको हैमरिंग करेंगे, ठोकेंगे या फिर ऊंचाई से फेंकेंगे तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और अगर हम जब उसको यूज़ नहीं करते हैं और प्रॉपरली उसको स्टोर नहीं करते हैं तो भी वो मैग्नेट डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है। फिफ्थ, व्हाट इज़ द नीड फॉर स्टोरिंग मैग्नेट्स? मैग्नेट को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए होता है? आंसर. इफ़ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली अ मैग्नेट कैन लॉस इट्स मैग्नेटिज्म, हैंस मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली इन मैग्नेटिक कीपर्स. अगर हम मैग्नेट को प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देता है और इसके लिए हमें मैग्नेटिक कीपर्स में उसे स्टोर करना पड़ता है। Exercise H. Answer the following question in detail. First, explain how Earth behaves as a magnet. Draw a diagram showing Earth's magnet and geographic poles. अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, एक्सप्लेन कीजिए और डायग्राम बनाइए। आंसर. अर्थ हैज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड थस बिहेव लाइक अ मैग्नेट. अर्थ के पास अपनी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एंड ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक। सेकेंड, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मेकिंग टेम्परेरी मैग्नेट. टेम्परेरी मैग्नेट कैसे बनाया जाता है, एक्सप्लेन कीजिए। आंसर. टेम्परेरी मैग्नेट्स कैन बी मेड बाय रबिंग अ स्मॉल आयरन पीस विथ अ परमानेंट मैग्नेट. दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड टच मेथड और स्ट्रोक मेथड. देयर आर टू डिफरेंट टच मेथड कॉल्ड द सिंगल टच मेथड एंड डबल टच मेथड. टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए एक परमानेंट मैग्नेट लीजिए और एक आयरन पीस लीजिए. अब आयरन पीस के ऊपर मैग्नेट को रब कीजिए. इस मेथड को टच मेथड कहा जाता है या स्ट्रोक मेथड कहा जाता है. ये टू जो मेथड है, एक सिंगल टच मेथड और डबल टच मेथड से टेम्परेरी मैग्नेट बनाया जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक. थर्ड, लिस्ट एनी 5 यूजेस ऑफ मैग्नेट्स. मैग्नेट्स के 5 यूजेस बताइए. आंसर. 5 uses of magnets are given below. First, magnets are used in electronic devices such as radio, television, loudspeaker and microphones. Second, electric motors and power generator also have strong magnets inside them. Third, magnetic storage devices such as hard disk use magnets. Fourth, magnetic strips are used in ATM cards and credit cards to store information. Fifth, magnets are used in the doors of refrigerator and almirah. Magnets इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ होता है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, लाउड स्पीकर में, माइक्रोफोन्स में, और इलेक्ट्रिक मोटर्स में, पावर जनरेटर में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है उसके अंदर. हार्ड डिस्क में यूज़ होता है मैग्नेट, और ATM कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड्स में मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई होती है. और रेफ्रिजरेटर के डोर्स में भी मैग्नेट यूज़ होता है. एक्सपेरिमेंट एम.
To investigate that a freely suspended magnet always aligns in the north-south direction. हमें बताना है कि मैग्नेट हमेशा जब हम उसको फ्रीली लटकाते हैं तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन रहता है, मीन्स रुकता है. मटेरियल्स रिक्वायर्ड: अ क्लैंप स्टैंड, थ्रेड और स्ट्रिंग एंड अ बार मैग्नेट. इसके लिए आपको एक क्लैंप स्टैंड चाहिए एंड थ्रेड चाहिए, डोरी चाहिए, ये और एक बार मैग्नेट चाहिए. प्रोसीजर: फर्स्ट, take a bar magnet and suspend it on the clamp stand holding it with the thread or string. एक बार मैग्नेट लीजिए और उसको डोरी से बांध करके उसको एक क्लैंप स्टैंड में लटका दीजिए. सेकेंड, allow it to suspend freely until it point to one direction and stay stable. अब जब वो मैग्नेट रुकता है, स्टेबल रहता है, तो आप उसकी डायरेक्शन को नोट कर लीजिए. और फिर उसके बाद थर्ड, ऑब्जर्व फॉर अ मिनट एंड मूव द मैग्नेट. उसके बाद 1 मिनट के बाद मैग्नेट को फिर से मूव कीजिए, हिलाइए. फोर्थ, नाउ ऑब्जर्व एंड चेक द अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेट. डज इट पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन एज बिफोर. तो आप फिर से उसको मूव करके फिर से जब वो स्टेबल रहता है तब आप उसका पॉइंट फिर से चेक कीजिए. तो वो हम हमेशा जैसे जब वो रुका था उस पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर जाके रुक जाता है, सेम डायरेक्शन में जैसे वो पहले रुका था. तो वो कौन सी डायरेक्शन थी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन: द बार मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो जब भी आप बार मैग्नेट को कितनी बार भी आप हिलाओगे और फिर जब वो स्टेबल हो जाता है, रुक जाता है, तो उसका पॉइंट नोट करोगे तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहता है. तो इससे पता चलता है कि जो मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन होता है.